You might have started 6 months back already. It's not like you're starting now. But whenever you start, you have to divide your preparation into 3 parts. आप classes लगाते ही इसलिए हो so that you are ready for the CAT exam. तो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से नहीं होती, क्लासेस होती हैं ऑन टॉपिक्स. जनरली इट टेक्स 2 hours टू एनालाइज अ मॉक प्रॉपर्ली, बिकॉज बहुत लोग 10 मिनट में एनालाइज कर लेते हैं. आई डोंट नो हाउ डज दैट हैपन, बट एनालिसिस डज नॉट ओनली मीन कि जो गलत ऑप्शन है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन रीड किया. इट मीन्स आई हैव लर्नड ऑल्सो. Hi everyone, this is Deepika, your VRC educator. Today we are going to discuss 5-month CAT VRC strategy. CAT and overall strategy as well, but we'll be emphasizing on VRC so that you can plan VRC even if you're starting now and get that 99 percentile. So first of all everyone, right, हमें ये ध्यान रखना कि exactly कितना time है. The exam is going to happen on 30th November, that is last Sunday of November. ये जो strategy है, अगर आप अपना preparation college के साथ balance कर रहे हो या with job balance कर रहे हो तो it will be helpful to you, right? तो आपको exactly मैं एक schedule बताऊंगी आपको कितने topics एक वीक में कर रहे हैं. अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल कुछ और भी साथ में टास्क हैं, कॉलेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, हाउ विल यू एग्जैक्टली कवर ऑल दीज टॉपिक्स. सो आई एम जस्ट गिविंग, आई विल बी गिविंग यू वीकली टास्क रादर देन डेली टास्क, सो दैट आप अर्ली राइजर हो या लेट पढ़ सकते हो. अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड ऑल दीज टॉपिक्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. So now, first of all, divide your preparation. This is a very generic suggestion, right? You might have started 6 months back already. It's not like you're starting now. But whenever you start, you have to divide your preparation into 3 parts. Part number 1 is where you learn the foundation. Now students, I have taken a video foundation course, right, on YouTube. It's a 6-hour video. I'm not saying it will help you in completing the syllabus, but it will give you a very good and clear idea on how to approach CAT level questions, how to read them in the right way, कितना time लगना चाहिए, what all skills are needed to solve CAT level, especially VRC questions. So just watch that, it will give you a good head start and then start completing your foundation or syllabus. Right, now this is something, if you're a beginner, you can just finish that in next 45 to 50 days, and after that start with self practice. Right, start with some topic tests. I would say if possible try to take some topic tests in phase 1 as well, and plus sectional tests, right, individual VRC, quant, LRDI, etc. Right, so try to finish at least, I would say, by September 20 sectional tests, 20 to 25 sectional tests overall. Right, I'm not saying just verbal, just quant. मतलब let's say मैंने 7 to 8 verbal के लिए, 7 to 8 quant के लिए, and then 7 to 8 DLR के लिए. Try to finish like that, and if more the merrier. अगर ज़्यादा ले सकते हो, if you have free time, it will be even better, because आपकी जो right strategy है for the exam वो तभी बनेगी जब आपने at least 8 से 10 सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ मॉक ले लिए होते हैं. तो आपकी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनती है कि आपको एग्जाम में कैसे करनी चाहिए. And then last segment or last phase, which will be October, November, last 2 months, should be only and only on to basically for revision, to play on your strengths, as well as taking all the full length mock tests as much as possible. I will not suggest do it on daily basis. Having said that, at least take 2 or 3 mocks in a week in the last at least last month for sure, so that आपकी प्रैक्टिस मॉक की ज़्यादा हो रही है. इन एग्जाम आपको कुछ न्यूनेस ना फील हो कि अच्छा, लाइक वेन एवर वी आर न्यू सिचुएशन वी फील नर्वस, उसकी वजह से समटाइम्स वी एंड अप लूजिंग मार्क्स. सो इट्स बेटर कि आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं लास्ट मंथ में कि आपके लिए एक बेसिकली आपके बिहेवियर का एक हैबिचुएटेड सिचुएशन है. ऐसा नहीं कि यू आर न्यू इन दिस एग्जाम टेकिंग एनवायरमेंट, इजंट इट? सो मेक श्योर यू डू दैट. ऑल्सो आपको पता चल चुका होगा आपके एडमिट्स कार्ड से कि बेसिकली आपका टाइमिंग क्या है, कौन सा स्लॉट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. ट्राई टू टेक जो सम ऑफ योर मॉक्स एट दैट पर्टिकुलर स्लॉट और टाइम के आफ्टरनून है तो तभी, सो दैट एग्जाम में भी आपको सेम वैसे ही एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस ना हो. ठीक है, ऑलराइट. Now let us discuss in detail for foundation कि कैसे हम weekly target क्या होना चाहिए. So weekly I would say 7 to 10 passages minimum, right? आपको करने ही करने हैं, you have to. Now you can divide, maybe your quant is weak, VRC आपका अच्छा है तो आपने 2 passages करके 4 days में अपना target कर दिया, and then rest 3 days में आप कुछ और कर रहे हो, like that. ये भी आप कर सकते हो, या maybe 1 RC every day. That's how you can complete it. So again, depending on how much time do you have, if you're working Monday to Friday, या आपका job work from home है तो आप accordingly वैसे manage कर सकते हो. That is something again you have to see. I'm just telling you how many questions you have to do on weekly basis for next 45 days if you're starting now. Right, so 7 RC passages, 5 verbal ability questions like para jumble, para summary, odd one out, right, para completion, etc. that you have to do, and then exercises as in
पिक अप 10 to 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच. आप ऐसे देखो कि डेली का अगर आप 5 करो तो दैट वे 20-25 आपके इन अ वीक हो जा रहे हैं. Do 4 quant topics in a week, students. Make sure. For example, we know arithmetic is important, but say 2 days मैंने arithmetic किया इस week में and 2 days मैंने algebra किया. So when you're doing 2 topics parallelly, you're covering more syllabus at a time within a month rather than just completing one topic, isn't it? So try to keep 4 topics if possible, like number system, geometry, algebra, arithmetic, but at least 2 topics for sure in a week parallelly, so that you're covering more in lesser time. And then 7 LRDS set, I would say like 1 or 2 set on daily basis minimum. Again, what I'm telling you is very bare minimum, assuming you also go to college or office and you have to take out time for these. So itna ye minimum karna. If possible, if you practice more, of course you'll improve faster and you can start your mocks, full length mocks early. Now phase 2, which will be starting students from your August, September approximately, your focus should be on accuracy, right? Your focus should be on mocks, right? Okay, I've learned all the topics. Now how exactly I'll be performing in exam? Because exam में उस condition में perform करना बहुत ही different होता है, because you have only 2 minutes approximately for each question, and somehow like if you're feeling nervous, even though you know a lot of things, you might end up making some getting some answer questions wrong, isn't it? आपके answers गलत हो सकते हैं. For that reason आपकी थोड़ी mock practice early start हो जानी चाहिए, so that you don't feel nervous or new kind of environment when you go for the exam. So for that again try करो कि आप एक ही दिन में 7 RC 15 VA exercises करो, right? Approximately 5 to 6 quant topics, whichever is remaining, mixed करो difficulty level, because exam is all about every section will be full of easy, medium and hard level questions. So वो चीज़ करो. 10 LRDI के set करो in a week, and एक full length mock minimum लो, minimum. If you can take 2 in a week, that is actually best. पर अगर 2 नहीं ले सकते हो तो 1 is compulsory for you. If we come to third phase, right, that is October, November, last 2 months, you have to only play on your strengths, revise everything and then take full length mocks. So ideally आपको 3 to 5 mocks लेने चाहिए depending on your accuracy. I feel अगर आपका अभी तक आपने 1-2 mocks लिए before this and if your score is some in the range of 90 plus, 90 प्लस आपका ऑलरेडी आ रहा है. अगेन कहाँ के मॉक ले रहे हो आप, क्या डिफिकल्टी लेवल है उस पर वेरी करेगा, बट 90 प्लस अप्रॉक्सीमेटली स्कोर है तो यू कैन ईजिली टेक 5 मॉक्स इन अ वीक. बट इफ योर स्कोर इज नॉट 90 प्लस, समथिंग इन द रेंज ऑफ आई वुड से 40 to 70, 40 to 80 approximately or so, then I don't think 5 mocks will be right for you. In that case you can just take 2 or 3 mocks, but analyze them really well. Whatever questions you're getting wrong, उनको वापस से जाके पढ़ाई करो and then take another mock, so that you see some uptick, some improvement in your next mock, isn't it? That way gradually with second, third, fourth, fifth or maybe by the 10th mock you'll see a marked improvement in your overall score, right? And once your scores are improving, you can definitely increase the frequency of your mocks as well, like आप फिर 2 से 3 ले सकते हो या 4 ले सकते हो in a week. Now past your questions, try to finish as much as possible either in the last 2 months or you can start now also. Anyone say who is doing self study, वो अपने सेल्फ स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं, आई फील पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छा कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, राइट? लाइक दैट. इवन इफ यू एसोसिएट विद अ कोचिंग से अन अकेडमी और एनी अदर कोचिंग, आई स्टिल फील अपार्ट फ्रॉम दैट कोचिंग स्टडी मटेरियल यू हैव टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, जो जनरली हम लोग सब लोग बुक्स में इंक्लूड करते ही करते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि सारे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मिस हो जाए, तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर को देख के आपको सॉल्व करना है. After that, take sectional mocks if possible. In that also, because when you take full length mock, you will still realize, okay, DLR is not my strength. So rather than wasting another mock, full mock, just to practice DLR if you're improving or not, or realizing that, it's better to take 2 DLR के sectional mocks, थोड़ा उसमें improvement देखो, and then आपको लग रहा है तो then take another full length mock and see overall performance. Ultimately ये जो आपका CAT score होगा तीनों section की वजह से होगा, not just because of your one weak or one strong section, isn't it? So make sure आप सेक्शनल मॉक भी लो अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, rather than taking full length mocks only all together. लास्ट में रिविजन कर लो जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, क्वांट के, डीआई के, जो भी आपने स्टेप्स या बेसिक फॉर्मूला सीखे हैं. वर्बल में फॉर एग्जांपल अगर बेसिक कुछ चीज़, वैसे वर्बल में कुछ रिविजन करने को होता नहीं है, यू कैन ओनली प्रैक्टिस से 2 RC 4-5 VA question on daily basis and that is it, right? VRC is more still towards the practice side till the end of the exam rather than revising anything in that. So do all of those things
एंड राइट, जब आप मॉक लेते हो उस टाइम पे इट इज़ वेरी नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज इट. जनरली इट टेक्स 2 hours टू एनालाइज अ मॉक प्रॉपरली, बिकॉज बहुत लोग 10 मिनट में एनालाइज कर लेते हैं. आई डोंट नो हाउ डज दैट हैपन, बट एनालिसिस डज नॉट ओनली मीन कि जो गलत ऑप्शन है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन रीड किया. इट मीन्स आई हैव लर्नड ऑल्सो, आई हैव सीखा भी मैंने कि okay, next time I get similar question, how exactly I need to think, how exactly I need to read, and what all things I did wrong in this particular mock. Was I in hurry, because of that I read the question wrong, or did I read the passage wrong? राइट, वो अपनी खुद की भी एक पर्सनल हमें वीकनेसेस दिखाई देती है जब हम एक मॉक एनालिसिस करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही गलत हो गया तो अपन ने गलत आंसर किया. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अबाउट आवरसेल्व्स एज वेल. तो वो इंप्रूवमेंट आपको ओवरऑल लाना पड़ेगा अपने टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में और अपने पर्सनैलिटी में. ऐसे अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो, आप जल्दी कुछ कोशिश करो 30 सेकेंड में सॉल्व करने के डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑफकोर्स वो गलत होगा. तो पेशेंस भी सीखना है, फॉर एग्जाम्पल राइट, कंसिस्टेंसी सीखने की, क्योंकि लास्ट वीक यू डिड नॉट स्टडी एट ऑल, दैट्स वाई यू सीइंग अ ड्रॉप इन योर मॉक स्कोर. नॉट बिकॉज आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, आपने सिलेबस तो कर लिया राइट, दैट मीन्स यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. सो वो सारे इंप्रूवमेंट जब आप इसको थोड़ा सीरियसली करोगे तो आपकी भी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, एग्जाम में भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा. ये सारी चीज़ें इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है. टू 99 परसेंटाइल लाना इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़ एंड क्वेश्चंस, इट्स अबाउट यू एज वेल. आप अपने आप को 99 परसेंटाइल लेवल पे कैसे लेके जा रहे हो. एंड दैट अपना ट्रैकर अपडेट करो, मीन्स आपके जनरली कितना परसेंटाइल इंप्रूव हुआ है इन लास्ट 3 मॉक्स 4 मॉक्स इन लास्ट 15 days. एरर लॉग बनाओ कि कहाँ कहाँ आपके कंसिस्टेंट एरर्स आते हैं, आपके वीकर एरियाज़ क्या हैं, उस पर 3-4 days निकालो सेपरेटली. आई वुड से 3-4 days बोलने से अच्छा आई वुड से 10 to 12 hours, बिकॉज व्हेन यू स्टडी समथिंग फॉर 10 to 12 hours एट अ स्ट्रेच, ऑफकोर्स एट वी विल टेक अ ब्रेक, तभी आपको चीज़ समझ आती है. इफ यू जस्ट स्टडी फॉर 1 or 2 hours, mostly you don't exactly learn where you're going wrong and what is it about that topic. You need that deep work, long sitting with that particular topic. So when I say 10 hours, what you can do is आप अभी रात में पढ़ रहे हो for 4 hours, आप जॉब पे गए, कॉलेज से आए, 8 to 12 आपने पढ़ाई की and then you slept. After that you woke up next day. If say tomorrow is weekend, Sunday, again 9 a.m. or 10 a.m. so you started till 2 or 3 p.m. तो जब 4 to 8 to 9 hours इस तरह से आप बैक टू बैक दे रहे हो, मे बी विद लाइक नो इन 2 parts or 3 parts, यू विल अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन मच बेटर वे रैदर देन आपने आज 1 hour दिया, फिर देन yesterday you studied something else for 1 hour, you will forget what you have just learned, isn't it? So basically sitting or doing deep work, sitting for longer hours on a certain topic will give you much better insights, you'll improve faster rather than studying something in bite-sized pieces, right? That doesn't really work. ठीक है. एंड देन जितना हो सके आपके वीकर ये लास्ट में रिवीजन कर लो, बिकॉज रिवीजन या स्ट्रेंथ्स पे आप खेलने वाले हो. वी नो दैट कैट एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग और अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, इजंट इट, कि पूरा मुझे सारे जितने क्वेश्चन सब कुछ करने हैं, मुझे सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन. तो इवन दो आई एम नॉट गुड एट 1 or 2 टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट मोमेंट, एक्चुअली दैट्स एब्सोल्युटली ओके, इजंट इट. मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं ठीक हो रहा है, उसके 1 या 2, हाँ जैसे कुछ टॉपिक्स है यू हैव टू बी गुड एट इट, लाइक VRC में, RC में आपको बेस्ट होना ही पड़ेगा, वहाँ पे आप यू कांट से कि वीक है तो चलेगा, नहीं नहीं. पर से वर्बल एबिलिटी का कोई एक आपका वीकर एरिया अभी भी इन नवंबर यू रियलाइज से पैरा जंबल, आई थिंक दैट्स ओके, बिकॉज के जनरली हम 2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस भी आएंगे तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इजंट इट, उससे ज़्यादा क्या ही आएंगे. तो वो एक लेस रिस्की पार्ट है कि ठीक है इसको टॉपिक को इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बट व्हेन कम्स टू टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, दे हैव टू बी योर स्ट्रेंथ, दीज टॉपिक्स, you can't help it, right? Okay, now start with your strongest section, as in of course section तो हमें VRC करना है. the point is start with your strongest questions, right? for example मुझे अगर लगता है मेरा RC लाइक स्ट्रॉन्ग है तो आप RC से स्टार्ट करो. मुझे लगता है मेरा VA थोड़ा अच्छा है, या फिर आई फील मोर कंफर्टेबल विद वर्बल एबिलिटी बिकॉज 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन हो जाता है. सो मीन्स इन नेक्स्ट 10 minutes आई एंड अप डूइंग 3 to 4 क्वेश्चन, आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिकअप करके सही सही कर दिए हैं. तो आई हैव स्टार्टेड विद द एग्जाम, बिकॉज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हाट हैपन्स, फर्स्ट 8 to 10 minutes में एक RC हो पाता है, तो आपको लगता है अरे बहुत कम हुआ है, देन यू एक टेंशन आ जाता है लाइक कि एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 40 minutes में आई विल बी एबल टू डू VRC और नॉट. सो स्टार्ट विद दैट पोर्शन जो आप कंफर्टेबल हो. सिमिलरली विद LR DI, LR is more comfortable or DI is more comfortable. Start with that part or section or question, right? I hope you get it. And then उस चीज़ को आप ensure करो कि आप जब भी मॉक्स ले रहे हो आप रिव्यू करो अपने खुद के मॉक पैटर्न्स को, राइट? एक होता है हम जब मॉक एनालिसिस देखते हैं टीचर्स का, क्लासेस का, तो वो बहुत ही जेनरिक तरीका होता है कि
मोस्ट स्टूडेंट्स की ये गलत है, तो टीचर आपको बता रहा है, बट देर आर योर ओन पैटर्न्स एज वेल, योर इंडिविजुअल की यू आर ऑलवेज गेटिंग पैराजम्बल रॉन्ग, आपका बाकी सब सही है। या फिर अगर आप स्टार्टिंग में 5 मिनट्स लेके भले वो वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है आई विल बी डूइंग दीज 2 RCs एंड आउट ऑफ दीज 8 VA क्वेश्चन, ये 3 तो ईजी लग रहे हैं लैंग्वेज वाइज, एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फास्टर, सो फर्स्ट आई विल डू दीज इन फर्स्ट 30-35 मिनट्स एंड लास्ट के 5 या 10 मिनट्स में देख लेंगे व्हाट एल्स आई कैन डू। सो इवन दो यू फील लाइक यूर वेस्टिंग फर्स्ट 5 मिनट्स टू पिक अप द क्वेश्चन, ट्रस्ट मी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। सो आपका क्या पैटर्न है, आप किस तरीके से कर रहे हो, व्हाट इज टेकिंग you behind from reaching your target score, all analyzing all those things are very important। just going generically with many videos जहाँ पे बहुत ही generic analysis चल रहा है, मुझे लगता है वो follow करो। of course some questions के आंसर हमें मिलेंगे, but उसको अपनी preparation में implement करना, उसके according चलना is definitely not right। राइट एंड देन येस आई फील अक्टूबर 31 के बाद कुछ भी नए क्लासेस नहीं करने चाहिए। आप क्लासेस लगाते ही इसलिए हो सो दैट यू आर रेडी फॉर द कैट एग्जाम। सो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से नहीं होती, क्लासेस होती है ऑन टॉपिक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टुमारो वी आर डूइंग पैराजम्बल, देन वी आर डूइंग समरी। Exam will be mix of everything and maybe after 1 RC you may get 1 summary question, isn't it? Understand that। so आपका जो mental flexibility है, अप्रोच चेंज करने की आदत है, टाइमर के साथ में वो चीज़ क्लिक होनी चाहिए 2 मिनट में किसका आंसर ये है, उसके लिए जितने आप मॉक्स लोगे उतना ही बेटर है। सो मेक श्योर यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, यू आर नॉट अटेंडिंग क्लासेज अननेसेसरीली, राइट। यू ओनली अटेंडिंग दोज क्लासेज विच टॉपिक्स यू फाइंड स्टिल वीक, आपको स्टिल बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, वो आपके वीक है, तो फिर उसके आप 1-2 टॉपिक के क्लासेस कर लो, बट डू नॉट जस्ट डू क्लासेस टू कंप्लीट द सिलेबस, स्टिल टू लर्न समथिंग न्यू। आपका जो भी है वो आप अक्टूबर तक खत्म करो, राइट। सारा सिलेबस है एवरीथिंग। नवंबर शुड बी ओनली ऑन एंटायरली सेल्फ स्टडी, इम्प्रूवमेंट, मॉक एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग, और हाँ कोई 1-2 टॉपिक वीक है तो ऑफकोर्स उसका क्लासेस आप कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं। So yeah, that is it everyone. We are starting our CAT 2026 batch. It is an early start batch. I always say it is never too early to start for like CAT exam because competition is so much। अगर आप जल्दी start करते हो तो आपको बेसिकली एक तो नर्वसनेस नहीं होती है वाइल प्रेपरेशन। इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज विच मोस्ट ऑफ यू आर, बीच में एग्जाम्स हैं, आप 1 हफ्ते का ब्रेक भी ले रहे हो फ्रॉम प्रेपरेशन, तो यू डोंट फील बैड और गिल्टी कि अरे यार इतना मिस हो जाएगा, दैट्स ओके बिकॉज यू स्टार्टिंग अर्ली, इजंट इट। सो आई फील 1 ईयर इज मिनिमम, उतने में तो स्टार्ट करना ही चाहिए, बट उससे पहले भी अगर आप स्टार्ट करो तो बहुत ही अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज माई डिस्काउंट कोड DA Live। यू कैन use this to get maximum discount on your subscription and join this batch। apart from that we have another product Iconic Pro, in which we teachers along with your Iconic mentor give you one-on-one mentorship, right। इसमें हम आपको Zoom के थ्रू बहुत सारी mentorship देते हैं, preparation type related, admission exam, कॉलेज में admission related एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा आई वुड से फीचर्स इन्वॉल्व हैं अगर आप देखो, कंपेयर करो कंपेयर टू Iconic एंड Pro, राइट। और फीस कंपेरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको अनलिमिटेड सेशंस मिल रहे हैं, वेयर्स Iconic में 4 सेशंस ही मिलते हैं इन अ मंथ, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली आपके लाइव सेशंस टॉपर्स के साथ होते हैं जो कि बाकी सब्सक्रिप्शन में नहीं है। सो मच मोर सर्विसेज। सो अगर आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग भी चाहिए, आपको सिर्फ क्लासेस में सबके साथ हो पाएगा, बट आई एम स्लाइटली इन एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो एक तो उनके लिए, एंड सेकेंडली दो स्टूडेंट्स जो अगेन काफ़ी बिजी हैं, उनको जितना गाइड किया जाएगा हम वही फॉलो कर सकते हैं। अभी हमें खुद से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता अबाउट कैट एग्जाम, तो आई फील कैट Iconic Pro is useful for you। a lot of students do not have the elder brother, sisters or someone who can guide them, और बहुत क्लूलेस रहते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ योर बेसिक, आप स्टार्टिंग, आप फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हो। जनरली जो लोग सेकेंड टाइम देते हैं उनको फिर भी एक आइडिया लग जाता है। सो आई फील दिस Iconic Pro is ideal for all those students। ना स्टूडेंट्स, हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स कि बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आपको एक आइडिया लगे विदाउट प्रिपरेशन ऑल्सो वेयर डू यू स्टैंड, सो दैट अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, एंड इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेट यू डोंट हैव टू टेक अननेसेसरी टेंशन जो आप ले रहे हो ऑलरेडी। सो अभी आपको सबको पता चलेगा कि बेसिकली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो मेक श्योर जुलाई 6 को एग्जाम है, ईदर 12:30 और 5 PM। यू कैन बुक योर स्लॉट अकॉर्डिंगली, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एनरोल नाउ, ठीक है। आप इस पर एनरोल करोगे तो आपका कोई भी आपके प्रेफरेंस का आप स्लॉट बुक कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। या दीज आर कैट टॉपर्स एवरीवन, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आप इसको स्कैन करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, तो उसमें भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून इन अनदर क्लास।